Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that in the last few classes, we are continuously solving some practice questions related to the chapter money and banking. In today's class also, we are going to solve or do some numerical questions or the practical question basically in the class also. So there are several questions related to this. So let us discuss or solve some practical question. Okay? So in today's class also we are going to do some practical questions. So let's start our class. So first question is to increase the money supply in the economy. To increase the money supply in the economy, central bank will sell the government securities, sell the government securities. Option B, decrease the reserve requirement, decrease the reserve requirement. Option C, increase reverse repo rate, increase reverse repo rate. Option D, increase the margin requirement, increase the मार्जिन रिक्वायरमेंट. ओके, सो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है. सो टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करे. ठीक है, ओके. सो जब मनी सप्लाई इकॉनमी में इंक्रीज करना पड़ता है तो इस केस में जो भी सारे रेट होते हैं ना, ऑलमोस्ट सारे रेट को कम कर दिया जाता है, जिससे जो भी क्रेडिट है इट बिकम्स दी चीपर. सो मोर ऑफ द पीपल कैन take the credit from the commercial bank, so that the money will be more increased or the money supply will increase in the economy. So whatever the AT become the less than the aggregate supply, so now the AT becomes more. So we again reach the point of the equilibrium or the full employment situation where the aggregate demand is equal to the aggregate supply. So for that, सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब सेल करती है गवर्नमेंट, तो किस केस में करती है, जब इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना पड़ता है, इकॉनमी में पैसे को रोकना है, तो वो क्या करती है, सेल करती है, जिससे जो भी लोगों के पास पैसा है वो सेंट्रल बैंक के पास आता है. सो ये तो होगा. इंक्रीज रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा देगी तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट बिकम्स द कॉस्टलियर, है ना. लोग लोन कम लेंगे और हमें लोन कम नहीं चाहिए, हमें लोन इकॉनमी में ज़्यादा चाहिए, मनी सप्लाई ज़्यादा चाहिए, तो ये भी नहीं होगा. मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा बढ़ा देगी तो जो डिफरेंस है वो बैंक के पास ज़्यादा जाएगा. जैसे 10 लाख का है, अब वो 5 लाख ले रही है, तो 5 लाख अगर लोग बैंक के पास चला जाएगा तो कोई भी जनरल पब्लिक जो अपनी सिक्योरिटी दे रहा है तो उसको तो लॉस हो जाएगा. बट अगर यही रेट को कम कर देगी तो 10 से 1 लाख तो 2 ही लाख वो अपने पास रखेगी. तो इस केस में ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट है डिक्रीज इन द रिजर्व रिक्वायरमेंट. जो भी रिजर्व का रिक्वायरमेंट है उसमें वो क्या करती है, अगर डिक्रीज करती है तो अगर डिक्रीज करती है जो भी रिजर्व रिक्वायरमेंट है, आपको पता है रिजर्व रिक्वायरमेंट में 2 आते हैं, दैट इज CRR and SLR. CRR मीन्स कैश
reserve ratio, and SLR is statutory liquidity ratio. ठीक है, तो CRR अगर इंक्रीज कर रही है, CRR मतलब कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो सारे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं। SLR जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट जो सेंट्रल बैंक कहती है कि हर एक कमर्शियल बैंक अपने पास क्या करेगा, वो रिजर्व रखेगा। अगर ये रेट बढ़ा दिया जाएगा तो क्रेडिट कॉस्टलियर हो जाएगा। सो नोबडी इज़ रेडी टू टेक द लोन फ्रॉम दी even commercial bank are not ready to take the loan from the central bank, or not even not deposit more of the money with the central bank. So in that case, if the rate increased, so what will happen? So there should be decrease in the all these rates, CRR and SLR. So the more money will be created with the commercial bank, and the more people will take the money or the loan from the commercial bank, so that money supply in the economy will increase. So the option B is the right answer in this question. Okay, so let's take another questions. Now moving to the next question. Okay. So the question is again based on the assertion and the reason. Okay. Assertion A. Central bank is called as an agent of the government. Okay, central bank is called as an agent of the government. Now reason is central bank manages the public debt of the government. Okay, now the assertion, option is both assertion and reason are true. Okay, both assertion and reason are true, and reason is correct explanation of assertion. Okay. Option B, both assertion and reason are true, and reason is not correct explanation of assertion. Option C is assertion is true, but reason is false.
ऑप्शन डी इज assertion is false but reason is true. ओके, ये ऑप्शन आपके पास दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। इसमें आंसर इसमें ही हिडन है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड एज, सेंट्रल बैंक को क्या कहते हैं? एक गवर्नमेंट का एजेंट कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक मैनेजेस द पब्लिक डेट ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक क्या करता है? पब्लिक डेट जो भी गवर्नमेंट का है उसको मैनेज, ठीक है। सेंट्रल बैंक को हम लोग एजेंट तो कहते ही हैं, हमें पता ही है। और सेंट्रल बैंक को एजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के पब्लिक डेट को मैनेज करता है। सो ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर, दैट इज बोथ assertion and reason are the true and the reason is the correct explanation of the assertion. So this is the right answer of this question. Now moving to the next question. Okay. क्या है क्वेश्चन? Is the difference between the amount of the loan taken and the value of the collateral security and the value of collateral security. Okay, ऑप्शन क्या क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी रिजर्व रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी रेट ऑफ ओपन मार्केट, and option D is reserve requirement. Option D is the none of the above. Sorry. So ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज़ द डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है किसके बीच का? अमाउंट ऑफ द लोन, जो भी अमाउंट ऑफ लोन लिया गया है, एंड दी वैल्यू ऑफ द कोलैटरल सिक्योरिटी, जो भी कोलैटरल सिक्योरिटी है, जो भी सिक्योरिटी दे रहे हैं उसके बीच का डिफरेंस होता है। जो भी अमाउंट लिया गया है, लोन लिया गया है, और उसके अगेंस्ट जो भी हम लोगों ने सिक्योरिटी दिया उसके अगेंस्ट जो भी हमें लोन मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पता है दैट इज कि इसमें क्या होगा, आप एक याद करिए, दिस इज द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक। ये किसी भी सेंट्रल बैंक का क्या होता है? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होता है। क्या होता है? दैट इज कि जब भी कोई भी इंडिविजुअल बैंक जाता है लोन लेने, तो उसके अगेंस्ट वो क्या शो करता है? अपनी सिक्योरिटी शो करता है कि हाँ ये उसकी सिक्योरिटी है। उसके अगेंस्ट क्या करती है बैंक? उसको लोन देती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का असेट है 10 लाख का, तो बैंक कभी भी 10 लाख की लोन नहीं देगी, वो कुछ ना कुछ रिड्यूस करके देती है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का है तो उसके अगेंस्ट उसको 7 लाख देती है। तो जो भी डिफरेंस हो गया 10 लाख माइनस 7 लाख दैट इज 3 लाख, यही क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो इसमें से क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now moving to the next question, it is also based on the assertion and the reason. Assertion. To decrease money supply in the economy, central bank will increase the reverse repo rate. Increase in reverse repo rate will encourage the commercial bank to park more of their excess deposit with central bank these two assertion and reason are the given. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि to increase the money supply in the economy. Okay, money supply in the economy. So central bank क्या कर रहा है, central bank will increase the reverse repo rate. Central bank क्या करेगा, reverse repo rate को increase करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऑप्शंस ले लेते हैं। पहला है both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion.
ऑप्शन बी, both assertion and reason are true and reason is not correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Option C, assertion is true but reason is false. Option D, ये सारे ऑप्शंस क्या है आपको दे रखे हैं। इसमें कह रहा है कि assertion और reason. So assertion is that is to decrease the money supply. अगर इकॉनमी में मनी सप्लाई को क्या करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। अब उसके लिए कह रहा है कि सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करेगा। चलो ठीक है। फिर कह रहा है कि इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, अगर क्या होता है रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाता है, सो इट विल इनकरेज द कमर्शियल बैंक। ये क्या करेगा, ये कमर्शियल बैंक को क्या करेगा, इनकरेज करेगा टू पार्क मोर ऑफ देयर एक्सेस डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है डिपॉजिट को सेंट्रल बैंक के पास क्या करिए, रखिए, ठीक है। ओके, ठीक है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, एक्सेस डिपॉजिट सेंट्रल बैंक के साथ, ठीक है। तो आपको पता है टू डिक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकॉनमी का मतलब क्या है कि मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है। सो इट विल बी द सिचुएशन ऑफ दी व्हाट, इट विल बी द सिचुएशन ऑफ दी इन्फ्लेशन। ये सिचुएशन किसकी हो जाएगी, वो सिचुएशन इन्फ्लेशन की हो जाएगी, ठीक है। इन्फ्लेशन के केस में रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि व्हेन द commercial bank have their surplus fund, they deposit or they kept their surplus fund with the central bank. वो सेंट्रल बैंक के पास क्या कर देते हैं, उन फंड्स को रख देते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर इकॉनमी में किसकी कंडीशन हो जाए, अगर इकॉनमी में सिचुएशन हो जाए इन्फ्लेशन की, इस केस पे क्या होगा, इस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगी, सेंट्रल बैंक करेगी कि रेट को इंक्रीज़ कर देगी। अगर इस रेट को इंक्रीज़ कर देगी, फॉर एग्जांपल कि पहले सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को 5% इंटरेस्ट दे रही थी उनके एक सरप्लस फंड को रखने का, अब वो बोलेंगे कि नहीं, आपको क्या है 5% की जगह इंस्टेड ऑफ 5 यू हैव टू पे इट अप टू दी 10%, आपको 10% तक मिलेगा। तो इससे कोई भी कमर्शियल बैंक क्या होंगे, वो इनकरेज होंगे, वो ज़्यादा फंड किसके पास रखेंगे, कमर्शियल सेंट्रल बैंक के पास रखेंगे। तो ज़्यादा सरप्लस फंड किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास, और एक्स्ट्रा जो भी फंड है वो कमर्शियल बैंक के पास कम बचेगा। सो दैट दे विल डिस्करेज, वो क्या होंगे,
डिस्करेज होंगे कि अरे हमारा तो सारा पैसा उनके पास ही चला गया, उनके पास इकॉनमी में पैसा, उनके पास कमर्शियल बैंक के पास कम बचेगा, जब कम बचेगा तो वो जनरल पब्लिक को भी कम देगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग। और सेकेंड स्टेटमेंट इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट वो इंकरेज करता है कमर्शियल बैंकों की पार मोर देयर एक्सेस डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। तो उसमें हो जाएगा असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज द ट्रू। वो रीज़न क्या है, ट्रू है।